Everyone, today I'm again here with the chapter Lost Spring, and today I'm going to teach you the second part of the Lost Spring. Yeah. So, in the earlier, that means in part 1, I have discussed about Sahib, okay, and how he was leading his life. Now it's time for the Mukesh. And you know as well that in my previous video I have introduced Mukesh. Who was Mukesh? So Mukesh, who is a bangle seller, bangle maker. Sorry, it's not bangle seller. Okay, he is a bangle maker, and so how he suffers, okay, in his life, how the poverty involves and makes his life shuddered. Let's come here, and the chapter starts with I want to drive a car. This is, you can speak about the dream of Mukesh. Okay, so Mukesh insists on being his own master, and I will be a motor mechanic, he announces. Okay, so author here asks to Mukesh that he knows about the cars. So, what was his answer? I will learn to drive a car. He answers, looking straight into my eyes, and his dream looks like a mirage. Amidst that means among. And mirage, you know, illusion. Bhranti जिसको बोलते हैं. The dust of street that fill his town, Firozabad, famous for his bangles. Guys, यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि वो उसका जो इमेज जो उसका जो ड्रीम था, ठीक है, that he wants to become a driver a car, he wants to drive a car. Okay, that's his imagination, that's his you can speak about dream, but it's become, his dream has been called mirage because ये पूरा धुंधला पड़ा हुआ है. ठीक है, मिरेज में क्या होता है, मुझे दिखाई नहीं पड़ता ना, इल्यूशन लगता है कि वहाँ पानी है, चलो तो फिर वहाँ मिलता नहीं है. ठीक है, तो उसका लाइफ भी वैसा डल टाइप का है. ठीक है, जहाँ पे इम्पॉसिबल है, जहाँ पे उसको एक पैसा एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ पे वो कैसे ड्राइव कर सकता है कार. ठीक है, तो चलिए, इसलिए यहाँ पे एक लाइन को एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पे थोड़ा सा फिरोज़ाबाद के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है that in Firozabad it is engaged in making bangles. So Firozabad is too much famous for making bangles, and it is a center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Okay, so Firozabad is too much famous for welding glass, making bangles, and years had gone. Okay, but उसके फादर फिर उसके फादर, ऐसे चलता आ रहा है उनका जनरेशन्स. बट ये जनरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है जो मेकिंग बैंगल्स नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, उनके भी फादर करते थे, जनरेशन चलता आ रहा है. So here is a little description about Mukesh's family. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. You know very well that in bangle factories, okay, the temperature is too high. That's why at the young age the children lose their lives. Okay, they face maximum children, they suffer from cancer or TB. Okay, mostly TBs, because in this factory the whole room, it's not room, you can speak about a large hall you can speak about. Okay, and totally the room is totally closed. That means there is too much dark, and in that dark there is called the lamp. Okay, that is of kerosene lamp. Okay, and you can speak about the smoke comes out, dark smokes comes out from there, and that goes into their lungs, and that creates TB from there. So दैट इज़ इलीगल फॉर द चिल्ड्रन. के लिए तो ये इलीगल है इतने कम एज में बच्चों को बैंगल्स मेकिंग बनाना, बैंगल्स मेकिंग पे लेके जाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, इन डेंजी, बहुत ही डर्टी एरिया होता है, सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, एंड दैट द लॉ इफ इन फोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे slog, that means toil, that means hard work, their daylight hours often losing the brightness of their eyes. Okay, और उन बहुत सारे बच्चे अंधे भी हो जाते हैं. ठीक है, इतना ज़्यादा वो अंधकार को फेस करते हैं डे के टाइम पे. ठीक है, कि वो उनको लाइट तो जस्ट बोले तो लाइट वही लैम्प से जो लाइट आ रहा है उस पर हमेशा देखना. ओके,
एकदम स्टेयर करना, सो इट्स टू मच टफ. So Mukesh's eyes beam as a volunteers to take me home, which is he proudly says he is being rebuilt. Okay, so मुकेश के फैमिली ने एक घर बनाया है, तो देखिए हमें घर कैसा बनाया है, बट उसी घर के लिए वो लोग बहुत खुश हैं. ठीक है, वो फिर से बना गया है, फिर से रिबिल्ड किया गया है. चलिए देखते हैं. सो ऑथर चलते हैं मुकेश के साथ. वी वॉक डाउन सिंगिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन. होवल्स, होवल्स का मतलब होता है शेड्स. हाँ, स्मॉल डिंजी एरिया होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग है. क्रम्बलिंग, हाँ, आप बोल सकते हैं फॉलिंग वॉल्स है, वुबली डोर्स है, नो विंडोज. ऐसा ऐसा दिखा रहा है घर जहाँ पे विंडोज ही नहीं है. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रीमेवल स्टेट. प्रीमेवल का मतलब होता है वेरी एंशियंट स्टेट. ओके, ऐसा लगता है कि बहुत पुराने जमाने में चला है. He stops at the door of one of such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dried grass, a fire stove over which seats a large vessel of sizzling spinach leaves. So there is a scenario, a scene that what the author had seen there. Okay, तो उनका जो घर है, okay, that is. Their homes are hovels with, okay, hovels with crumbling walls, okay, and they have no windows. They are crowded with families of humans and animals, and the elder of the family is poor bangle maker. यहाँ पे दिखाया गया है जो एल्डर है यहाँ पे घर के, वो बहुत ही पुअर है. ठीक है, और उन्होंने ऑथर ने देखा कि उसके घर में जब वो घुसा तो वहाँ पे एक स्पिनच का जो लीव्स है उसको एक लार्ज से स्टोव में उसको पकाया जा रहा है. ठीक है, चलिए चलते हैं. इस पेज में वैसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पीछे वाले पेज में चलता हूँ. फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग. फ्रेल का मतलब बहुत ही वीक. हाँ, एकदम वुमन बहुत वीक है, वो कुकिंग कर रही है मील सभी के लिए, पूरे फैमिली के लिए. Okay, and through eyes filled with smoke, she smiles, and she is the wife of Mukesh's elder brother. मुकेश के elder brother की wife है वो. ठीक है, so not much older in years, she began to command respect as the bahu. So they all respect them as a bahu. Okay, there is a custom you can see here. Okay, when the older man enters, he gently withdraws behind the broken wall and brings her veil. जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, विलेज में जो होता है यहाँ पे भी होता है. ठीक है, जब बड़े घुस रहे हैं घर के अंदर, आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, लेडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, दीवार के पीछे चली जाती हैं या अपना घूंघट उठा लेती हैं. ठीक है, सॉरी, उठा तो नहीं लेती हैं घूंघट को. ठीक है, घूंघट को वो लोग नीचे कर लेती हैं. वेल क्लोजर टू हर फेस. ठीक है, वेल का मतलब होता है घूंघट. एज कस्टम डिमांड्स, देखिए कस्टम क्या बोल रहा है कि डॉटर इन लॉ जो है मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड गाइज. ठीक है, मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड का बात किया जा रहा है यहाँ पे कि जब बड़े आ रहे हैं तो बहू जो होती हैं वो घूंघट उतार लेती हैं. ठीक है, नीचे कर लेती हैं. सो फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर. सो वहाँ पे बोला गया है जो एल्डर हैं, इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज बैंगल मेकर. वो एक बैंगल मेकर थे जो बड़े हैं उनके घर के. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर का काम करते थे, देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस. उन्होंने तक घर नहीं बना पाया. सेंड हिज 2 sons टू स्कूल एंड ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इन अ टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. घर उस वक्त बना नहीं पाए थे, दोनों बच्चों को स्कूल भेजे वो लोग हुए. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, जो सेकेंड एल्डर वुमन है, जो यहाँ पे उनके घर का जो सदस्य है, वो बोल रही हैं इट इज़ हिज कर्मा. डेस्टिनी की बात कर रही हैं. क्या बताया गया है डेस्टिनी के बारे में, चलो देखते हैं. बोल रहा है Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मतलब वो इतना स्ट्रगल किए हैं वो ग्रैनी, वो अपने आँखों के सामने अपने पति को अंधे होते देखी हैं. ठीक है, कैन अ गॉड गिवन लीनिएज, लीजियन का मतलब होता है एंसेस्ट्री. ओके, ये क्या जनरेशन के बाद जनरेशन चलता है, उसके बच्चे, उसके बच्चे भी, उसके बच्चे भी, ये क्या एक सीरीज़ में वो वही काम करते जा रहे हैं बैंगल मेकर्स. तो ग्रैनी बोल रही है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुकी है. ठीक है, और वो फील कर रही है एग्जॉशन, और उस एग्जॉशन पे बोल रही है कि क्या कभी ये चेन ब्रेक होगा. She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स देखिए जब से वो जन्मी है. ठीक है, तो बैंगल के कास्ट में जन्म लेना मतलब यही काम करना.
तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया, देखिए कौन कौन सा कलर का यहाँ पे बैंगल्स है। रनी गोल्ड, पार्टी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ओके, ये सारे कलर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि सजा कर रखे हुए हैं वहाँ पे। एंड पाइल ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स पुश्ड बी बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शांति टाउन एंड इन द डार्क हटमेंट्स। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, वहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आते हैं। सबिता जो है, यंग गर्ल इन ड्रैप डल पिंक ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन के पास बैठी हुई है। एल्डरली वुमन बोले तो ग्रैनी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, वो क्या करी, बॉन्डिंग कर रही है ग्लासेस को। एंड एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उनका हाथ इतना ज़्यादा स्पीड लगता है कि वो मशीन है। टोंग होता है ना, तो देखिएगा लोहा का जो फर्नेस रेडी करते हैं तो उनके हाथ में एक टोंग होता है, ठीक है, उस टोंग की बात की जा रही है। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. Sanctity का मतलब होता है sacredness. उनको क्या पता है जो बैंगल्स बनाया जा रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, एक भारतीय नारी का सुहाग का ये सिम्बलाइज करता है ये बैंगल्स, ऑस्पिशियसनेस, ठीक है, शुभ जिसको बोलते हैं इन मैरिज। चलिए, so she will then become a bride, and like the old women beside her who became one many years ago, वो भी एक समय थी, ठीक है, वो भी एक यंग बहू थी जब यहाँ पे आई थी। and she still has bangle on her, उनके हाथ में अभी भी रिस्ट में बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, उनके आँख में अब लाइट नहीं है। क्यों? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी स्पीक्स अबाउट दैट, मीन्स देखिए कितना ज़्यादा पोवर्टी उनके वहाँ पे है। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एंड शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम में वो कभी खाई नहीं है। क्यों? उसके जो हस्बैंड थे, एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बेयर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। सारा लाइफ उनका वो गुजार दिए इस बैंगल मेकिंग में, और जो लास्ट टाइम पे आए तो किसी तरह भी वो अपने रहने के लिए छत वो बनाए। छत तो आप बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कैसा उसका घर का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, उनको वही बोल रहे हैं रेनोवेट किया, उन्होंने रीबिल्ड किया है, ठीक है, टोटली यू कैन स्पीक अबाउट थैचेड रूफ, ठीक है, वो मड वाला जो आपका बोल सकते हैं वॉल है, ठीक है, ऊपर तो वो टीन भी नहीं है, टारपोलिन भी नहीं है, थैचेड रूफ है, ठीक है, छत जो है। चलिए यहाँ पे चले आते हैं, यहाँ पे बोला गया है द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। तो बड़े क्या सोचते हैं कि हमारा पूरा लाइफ जो चला गया इस बैंगल मेकिंग में, ठीक है, उनका और कुछ लाइफ में रहा ही नहीं। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, and it seems in the Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. देखिए इतने सालों से लोग फिरोज़ाबाद में काम करते आ रहे हैं बैंगल मेकिंग का, तो उनका जो सपना है, ठीक है, वो भी बड़े होंगे, रीच होंगे, बट ये सपना वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस यहाँ पे बोले गए हैं, ठीक है, वो लोग क्यों इतना ज़्यादा फोर्सफुल्ली उसी काम को करने के लिए बाध्य हैं, ये बताया गया है। मैं एक बार में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द वीसियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स। वीसियस का मतलब क्या? द क्रूएल and या evil बोल सकते हैं, and forefathers. When we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently, and their fathers are as tired as they are, and they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। क्या बोला गया है? देखिए यहाँ बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ से आपको यहाँ इसका मीनिंग बताता हूँ आप लोगों को। बोल रहा है कि जो यहाँ पे फिरोज़ाबाद में जो लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम, ठीक है, ये टाइम जो उनका गुजरा है, इतने सालों से बैंगल मेकिंग चल रहा है, एंड ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैज़ किल्ड द इनिशिएटिव ऑफ द यंग। बहुत सारे यंग्स मर भी गए हैं, बहुत सारे एंसेस्टर्स भी पहले मर चुके हैं। They cannot organize themselves into a cooperative, but इन लोगों में खुद की यूनिटी नहीं है। ये लोग अपना कोई लीडर नहीं बना पाए हैं बैंगल मेकिंग का, जो एक यूनिटी नहीं है उनमें, ठीक है, उनका खुद का एक लीडर नहीं है जो उनके अगेंस्ट में बोलेगा। मिडिल मैन एक्सप्लॉइट्स देम, तो मिडिल मैन कौन है यहाँ पे जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, कौन है ये पे? देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम एंड देयर आर टू वर्ल्ड्स। देखिए यहाँ पे दो वर्ल्ड की बात की गई है, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड की बात की गई है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी बर्टेंड, एक तो है फैमिली जो गरीबी पे जूझ रही है, ठीक है, और एक कौन है भाई?
बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और जो कास्ट में जन्मे हैं बैंगल्स मेकर्स, ठीक है, इस पे एक तो जूझ रहे हैं वो पोवर्टी की वजह से, ठीक है। और सेकंड क्या है, अ वीसियस सर्कल ऑफ द शाहूकार्स। ये शाहूकार्स किसको बोलते हैं, जिसको मैंने अभी बताया आप लोगों को, मिडिल मैन, पुलिसमैन है, कीपर्स ऑफ लॉ है, द ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स जो काम करते हैं, एंड द पॉलिटिशियंस। ये सभी क्या कर रहे हैं, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। मनी लेंडर है, मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, हु फ्लीज देम, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करके उनका लाइफ खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो जो बच्चा बड़ा होता है वो उसी धार खाते पे चला आ रहा है कि उसके पिताजी जब थे बैंगल मेकिंग करते थे वो भी धार पे चलते थे, इस मिडिल मैन जो थे उनके पैरों तले वो कुचल रहे थे। अब जो नया बच्चा आया, उनका बच्चा आया, वो भी सेम उसी प्रोसेस पे चल रहा है, बिकॉज इन यहाँ पे आवाज़ उठाने का किसी का भी साहस भी नहीं है, और बोल सकते हैं यूनिटी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका तो लीडर ही नहीं है जो उनको अपोज करे इसके बारे में, ठीक है। तो उनके फादर और उसका जो बच्चा है वो भी सेम एक ही प्रोसेस पे चल रहा है, वो भी मरेगा तो उसका बच्चा है वो भी सेम एक ही काम करेगा। When I see Flash, Mukesh, I am cheered. I want to be motor mechanic, he repeats, and he will go to a garage and learn. He insists, do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. तो ऑथर ने देखा कि इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर है, इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लोग, ठीक है, फिर भी देख रही हैं ऑथर कि मुकेश का जो आइज़ है अभी भी बहुत सारा ड्रीम देख रहा है वो, ओके, एंड वो चाहता है कि वो डिफरेंट हो इन लोगों से थोड़ा। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द चेन and he wants to be a motor mechanic, and the narrator asks him if he dreams of flying a plane. क्या तू प्लेन चलाना चाहेगा? And he silently says no. He is content to dream of cars that move down to the street of his town and few planes fly over फिरोजाबाद, ठीक है। वो सिर्फ चाहता है कि नहीं, मैं अपना लाइफ जो है इतना सा ही सपना में गुजारूं कि मैं किसी तरह मोटर मैकेनिक बन जाऊं, और तभी उसके फिरोज़ाबाद के टाउन के ऊपर से एक प्लेन गुजरती है, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का चैप्टर जो मैंने ख़त्म किया। तो मैं आप लोगों को यहाँ का जो क्वेश्चन आंसर्स हुआ मैं आप लोगों को वहाँ पे सेंड करता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू गाइज़।